اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ سبھی کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد، اور ہم سب کی جانب سے ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر میں چینل راہ حق 110 کی جانب سے جو پروگرام شروع کیا گیا تھا 110 بچوں کو لے کر کہ ان کا کمپٹیشن، اور اصلاً مقابلہ نہیں ہوتا ہے کسی چیز میں، لیکن بچوں کو انکریج کرنے کے لیے، بچوں کی تشویق کے لیے اس طرح کے پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ ہم اگر کسی بھی قسم کا کوئی انعامی مقابلہ رکھتے ہیں تو بچوں میں شوق بڑھتا ہے۔ یہ جو ہمارا چینل ہے راہ حق 110، اس کی بنیاد ابھی چند ماہ قبل رکھی گئی۔ جو فاؤنڈیشن ہے ہماری مولانا سید محمد صادق سوشیو ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن کے اندر جو اغراض و مقاصد ہیں اس فاؤنڈیشن کے، وہ ناظرین محترم بہت ہی واضح ہیں۔ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بہت سارے کام چل رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت سارے کاموں کو انجام دیا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کام فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہو رہے ہیں، مومنین کی نظر میں وہ کام رہیں۔ ہمارا ایک گروپ ہیلپنگ ہینڈ 110 کے نام سے واٹس ایپ گروپ ہے، جسے ہم نے بنایا ہے صرف اسی مقصد کو لے کر کہ جب ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں تو اسے اپنے اس گروپ میں جوڑیں، اور جو حضرات بھی فاؤنڈیشن کے کاموں میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہیلپنگ ہینڈ نام ہی اسی لیے رکھا ہے کہ امدادی ہاتھ، وہ ہمارے اس واٹس ایپ گروپ سے جڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھایا جائے گا۔ اور جو ہماری فاؤنڈیشن ہے صادق فاؤنڈیشن، یہ رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے۔ میں اس کے بارے میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری فاؤنڈیشن تقریباً 12 سال قبل رجسٹرڈ ہوئی، رجسٹر کرائی گئی، اور یہ رجسٹرڈ فاؤنڈیشن آج 12 سال سے اپنے کاموں کو دینی، تعلیمی، مذہبی، امدادی کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو مومنین شریک ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ ہر طریقے سے دامے درہمے سخنے اس میں تعاون کرتے رہتے ہیں، اور فاؤنڈیشن بھی ہر موقع پر مذہبی امدادی کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے۔ خفیہ طور پر بھی، ظاہرانہ طور پر بھی کاموں کو انجام دینا فاؤنڈیشن کا کام ہے۔ یہ پروگرام جو ہمارا شروع ہوا ہے، جس کو ہم نے آغاز کیا ہے، اس پروگرام کے اندر خاص طور سے ہم نے 110 بچوں کو شامل کیا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے میں آپ کو جلدی کچھ نام بتا دوں کہ ہماری فاؤنڈیشن کے اندر جو تعلیمی پروگرام سے متعلق بچے شامل ہوئے ہیں، ان 110 بچوں کو ہم نے کس طریقے سے چنا ہے۔ جو ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں، ان ویڈیوز میں سے بعض ویڈیو صحیح نہیں تھی، مثلا صحیح نہیں بھیجی گئی تھی، ادھوری تھی، تو انہیں ہٹاتے ہوئے جو 62 ویڈیو تقریباً آئی ہیں، 60 یا 62 ویڈیو ہیں، جب وہ فاؤنڈیشن کے پاس یعنی یہ چینل راہ حق کو ملی، تو ان ویڈیوز کو باقاعدہ ہمارے ایک پینل سے گزارا گیا، جس میں ہمارے ججز ہیں، جنہوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ جو بچے لائکس اور ویوز کے ذریعے سے آئے ہیں، یعنی جن بچوں کو ہمارے آڈینس نے، ہماری عوام نے چنا اور دیکھا، پسند کیا، ان بچوں کا باقاعدہ نام لسٹ میں رکھا گیا ہے، اور ویوز کے اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ جتنے ویوز ان کے سامنے آتے گئے ہیں، سب سے زیادہ جس بچے کی ویوز ہیں اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا، پھر اس سے کم جس کے ویوز ہیں اس کو دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے۔ اس طریقے سے ایک ترتیب بنا کر ہم نے 14 بچوں کی لسٹ جو نکالی ہے، ان میں وہ 14 بچے ویوز اور لائک کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا جو پہلا طریقہ تھا وہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم نے اس میں پرفارمنس کو دیکھا ہے کہ بچوں نے کیسے سوروں کو پڑھا ہے، کس طریقے سے اس میں دینی اور مذہبی چیزوں کو سنایا ہے، چاہے اصول دین ہوں، چاہے دیگر کوئی اور چیز ہو، جو بچوں نے سنائی ان کی عمر کے حساب سے انہیں دیکھا گیا ہے۔ جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو اس میں شریک ہیں، میں خود ہوں اور دیگر افراد ہیں، چینلز کے اور دوسرے لوگ ہیں جو ہماری فاؤنڈیشنز کے ممبر ہیں، ان سب کے بیچ بیٹھ کر کئی دن تک یہ ویڈیوز کو برابر سنا گیا، دیکھا گیا، اور
दोनों तरीक़े से, यानी लाइक और व्यूज़ के एतबार से भी 14% जो हमने निकाले हैं, 14 बच्चे चुने, और फिर उन बच्चों के अलावा 10 बच्चे हमने जो बेहतरीन, जिन्होंने अंदाज़ से पढ़ा, अच्छे अंदाज़ से सूरे और कलमा या जो भी चीज़ें सुनाई हैं, उम्र के एतबार से उन्हें देखा गया है। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 10 साल का बच्चा है, अगर वो कलमा सुना रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा है और वो कोई ऐसा सूरा सुना रहा है जो बड़ा सूरा है, जैसे सूरह शम्स किसी ने सुनाया, सूरह आला सुनाया, सूरह बलद सुनाया, तो ये जो उम्र के हिसाब से सूरे हैं, अगर छोटे बच्चे को बड़े सूरे याद हैं तो ये देखने की बात है। फिर वो बच्चा जो सुना रहा है, जिस उम्र का भी है, 5 साल, 6 साल, 8 साल का, उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, फिर जिस इलाक़े का है वो, उस एतबार से उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है। बहरहाल तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने 10 बच्चों को और चुना। तो जो 14 बच्चे हैं, मैं अभी उनके नाम आपके सामने पेश करूंगा और हमारे स्क्रीन पर उनके नाम आते जाएंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे इन बच्चों के नाम हमारे सामने हैं। बहुत सारे बच्चे, इनमें पहले व्यूज़ के एतबार से जब हम पुकारेंगे तो पहले बच्चे का नाम जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं, लाइक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उस एतबार से पहले बच्चे में उवैस रज़ा सल्लमहू हैं। इसके बाद सैयदा फ़ातिमा ज़ैनब, और इनके बाद हैं मुफ़ज़िल अब्बास सल्लमहू के बाद हैं अशल अब्बास। इनके बाद हैं मायशा ज़हरा सल्लमहा। मायशा ज़हरा के बाद हैं अलीज़ा फ़ातिमा के बाद हैं मोहम्मद जवाद पंजवानी। इनके बाद हैं सैयद सज्जाद हैदर के बाद हैं इन्नमा फ़ातिमा। इनके बाद हैं सैयद नक़ी ज़ैदी, और इनके बाद हैं सैयद अली हसन तक़वी के बाद हैं किनानी नूरुल अब्बास। इनके बाद हैं रहमा ज़हरा। इनके बाद अनम फ़ातिमा रजानी। ये 14 नाम वो हैं जो व्यूज़ और लाइक के एतबार से चुने गए हैं। ये बिल्कुल सामने की चीज़ है। इसके बाद जिन बच्चों ने, इन्हीं में से कुछ बच्चे हैं या इनसे हट कर हैं जिनके व्यूज़ या लाइक कम हैं, उनको कम लोगों ने देखा मसलन, लेकिन जो हमारी फाउंडेशंस के मेंबर हैं, उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी हमारी जब उसने सेलेक्ट किया तो उसमें उन बच्चों का जो पढ़ने का तरीक़ा या उनके जो सूरे हैं, उन्होंने ज़्यादा सूरे पढ़े, या इस एतबार से उन्हें अलग 10 बच्चों को जो चुना गया है, उनमें सैयद मुफ़ज़िल अब्बास हैं, सैयदा फ़ातिमा ज़ैनब हैं, सैयदा अबीहा फ़ातिमा जलाली हैं। सैयदा अबीहा फ़ातिमा जलाली के बाद फ़ुज़ैल रज़ा हैं। इनके बाद किनानी मुंतज़िर अब्बास सल्लमहू हैं। सैयदा निदा फ़ातिमा हैं। इनके बाद नयानी ज़ाकिया फ़ातिमा हैं। इनके बाद सैयद आयान अली नक़वी हैं। इनके बाद सनाए फ़िज़्ज़ा बाकरी हैं, और आखिर में आफरीन फ़ातिमा हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे 14 बच्चे और 10 बच्चे यानी 24 बच्चे हमने इस एतबार से चुन लिए कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा माशाअल्लाह से पढ़ा, और आवाम ने भी इनको पसंद किया, और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने भी इनको चुना, पसंद किया। आप तमाम नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा इसी चैनल राह हक़ 110 के ज़रिए से मुहर्रम पर अय्याम अज़ा के दरमियान, उसमें हमारी तवज्जो ख़ास इस बात पर रहेगी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नोहा, मरसिया, सलाम, रुबाई, क़तात, जो भी चीज़ें याद हों, या छोटी सी मजलिस अगर उन्हें आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, मुख्तसर वीडियो 2 से 4 मिनट, 5 मिनट बहुत ज़्यादा, इस मुख्तसर वक्फ़े में बच्चे को आप तैयार करें, आमादा करें। अय्याम अज़ा में इंशाअल्लाह वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम जारी रहेंगे इस तरह के। क्योंकि देखिए नाज़रीन मोहतरम, हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी फ़ाउंडेशन, सादिक़ फ़ाउंडेशन जो हमारी फ़ाउंडेशन है, ये जिस बुज़ुर्ग हस्ती के नाम पर है, बहुत सारे जो बुज़ुर्ग इस वक्त मौजूद होंगे वो जानते होंगे कि सरकार नजम मिल्लत ताबसरा जो अमरोहा से लखनऊ तशरीफ़ लाए और हमारे जद्द बुज़ुर्गवार थे, उन्होंने यहाँ आने के बाद बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दिया। मसलन नाज़मिया मदरसे की बुनियाद रखी, शिया कॉलेज की बुनियाद में उनका हाथ है। शिया कॉलेज की बुनियाद रखने के बाद
मुख्तलिफ़ मदारिस अमरोहा में सैयदुल मदारिस, नूरुल मदारिस, दीगर जितने भी और इदारे हैं अमरोहा में, IM इंटर कॉलेज, ये तमाम वो इदारे हैं कि जिनकी बुनियाद में सरकार नजम मिल्लत ताबसरा और इनके हमरा सरकार नासिरुल मिल्लत या आका हसन साहब और दीगर उस वक्त के बुज़ुर्ग उलमा और इल्मी शख्सियतें और वो अफराद जो मुखय्यर अफराद थे वो शाना बशाना रहे। आज ये इदारे कौम के बेहतरीन अफराद के हाथ में हैं और उनके हाथों में भी इन इदारों को तरक्की हासिल हो रही है। हमारी कोशिश है कि हम अपनी फ़ाउंडेशन के ज़रिए से अल्लामा सैयद मोहम्मद सादिक़ साहब मुज्तहिद ताबसरा, जो मेरे दादा मेरे जद थे, आपने कुरान मजीद का तर्जुमा किया, नहजुल बलागा का तर्जुमा किया, सहीफ़े कामिला और इसके अलावा दीगर बहुत सारी कुतुब हैं जिनके तर्जुमे अल्लामा सैयद मोहम्मद सादिक़ साहब मुज्तहिद ताबसरा ने किए। वो किताबें, वो तर्जुमे भी इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द ही दस्तयाब होंगे। और इंशाअल्लाह इसके अलावा भी फ़ाउंडेशन की कोशिश ये है कि जो अफराद भी जिन्होंने ऐसे इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं उनकी किताबें, उनके कारनामे फ़ाउंडेशन के ज़रिए सामने लाए जाएँ। तो मेरी गुजारिश नाज़रीन मोहतरम से आखिर में यही है कि हमारा जो हेल्पिंग हैंड ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके नंबर को, हमारे व्हाट्सएप नंबर को, जिस नंबर पर ये ग्रुप खुला हुआ है, हेल्पिंग हैंड 110, इसमें आप शामिल हों, अपने हाथ को हमारे हाथ से मिलाएं और इंशाअल्लाह जो मदद चाहने वाले लोग हैं वो भी इससे जुड़ें और जो मदद करने वाले अफराद हैं, मुखय्यर अफराद, वो भी जुड़ें और फ़ाउंडेशन के कामों का जायज़ा लें, देखें। इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करें कि फ़ाउंडेशन अपने कामों में, अपने अग़राज़ मक़ासिद में कामयाब हो और जो अफराद भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, खुदा उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। मैं आखिर में तमाम मोमिनीन को और फ़ाउंडेशन के तमाम मेंबरान को, चैनल राह हक़ 110 के जो भी मेंबरान हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन बच्चों को भी ख़ास तौर से उनके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो चैनल के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। चैनल राह हक़ 110 मौला अली के अदद पर ये नाम है, 110 मौला अली का अदद है। लिहाजा गदीर के दिन इस प्रोग्राम को हमने, इसका इख्तिताम तो नहीं कहा जाएगा लेकिन इनामी मुकाबले का जो नतीजा है उसको सामने रखा है और इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। हमारी गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें, 86 87 80 93 55 जो नंबर है। इसके अलावा एक दूसरा नंबर है जिसको आप स्क्रीन पर देखेंगे। इंशाअल्लाह इन नंबरों पर आप चैनल से जुड़ें और चैनल राह हक़ के ज़रिए से आप जो हमारी फ़ाउंडेशन है, सादिक़ फ़ाउंडेशन, और इसके ज़रिए से ANM अकेडमी, आयतुल्लाह सरकार नजम मिल्लत के नाम से अकेडमी है, इससे जो भी आप दीनी मज़हबी चीज़ों को मालूम करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट www.sadiqfoundation.com, इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आखिर में बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूँगा, बहुत मुबारकबाद तमाम नाज़रीन मोहतरम को जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन सब को भी खुदा हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हमारे इस अमल खैर को कबूलियत की बारगाह में जगह अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह शहज़ादी के सदक़े में इस चैनल को और इस फ़ाउंडेशन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल राह हक़ 110 को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाले अगले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप हमारे हर एक वीडियो को सबसे पहले देख सकें।